واشو کے علاقے کلگلی میں مسافر بس الٹ گئی، خواتین اور بچوں سمیت 28 مسافر جاں بحق، 22 زخمی، بعض زخمیوں کی حالت نازک۔ لیوز حکام نے ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ حادثے کا شکار بس گوادر سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ لیوز کے مطابق بس کو حادثہ ٹائر پھٹنے کی وجہ سے پیش آیا۔ عدت میں نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ملنے والی سزا کے خلاف اپیلوں پر محفوظ فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں سماعت جج شاہ رخ ارجمن نے پوچھا درخواست گزار کے وکیل رضوان عباسی آئے ہیں یا نہیں۔ معاون وکیل نے بتایا رضوان عباسی سپریم کورٹ میں ہے، تھوڑا وقت دے دیں۔ عدالت نے کہا 9 بجے کا وقت دیا تھا، رضوان عباسی کو آنا چاہیے تھا۔ معاون وکیل نے کہا رضوان عباسی دلائل دینا چاہتے ہیں۔ سیشن جج شاہ رخ ارجمن کی رضوان عباسی کو 10:30 بجے تک عدالت کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت۔ لاپتہ شاعر احمد فرحات کی بازیابی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ عدالت نے کیس کو لائیو نشر کرنے کے احکامات جاری کر رکھے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی سماعت کریں گے۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے ISI اور MI کے سیکٹر کمانڈر سمیت ڈائریکٹر IB، سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاع کو آج طلبی کے احکامات دیے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آڈیو لیکس کیس کی سماعت ہوگی۔ جسٹس بابر ستار کی عدالت نے DG IB، DG FIA اور چیئرمین PTA کو نوٹس جاری کیا تھا۔ عدالت نے بینچ پر اعتراض اور کیس سے الگ ہونے کی درخواستوں کو بدنیتی پر مبنی قرار دیتے ہوئے توہین عدالت کی کارروائی کا عندیہ دیا تھا۔ نواز شریف کی توشہ خانہ گاڑیوں سے متعلق ریفرنس پر درخواست بریت پر سماعت آج ہوگی۔ نواز شریف کے وکیل غازی مصباح درخواست بریت پر آج دلائل دیں گے۔ سماعت احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا کریں گے۔ راولپنڈی میں بحریہ ٹاؤن کے آفس پر نیب ٹیم کا چھاپا، ہاؤسنگ سوسائٹی کا ریکارڈ، کمپیوٹر، ہارڈ ڈسک، لیپ ٹاپ، CCTV ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ بحریہ ٹاؤن کے مالک سمیت ایگزیکٹوز کے دفاتر کی تلاشی، نیب ٹیم بحریہ ٹاؤن کے دفتر میں موجود سٹاف کے کچھ افراد کو بھی ساتھ لے گئی۔ نیب حکام کے مطابق کارروائی القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے کی گئی۔ حکمران جماعت نون لیگ کے صدر نواز شریف نے بجٹ اجلاس آج جاتی عمرہ میں طلب کر لیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کی بھی شرکت متوقع۔ ملک بھر میں گرمی کی شدت برقرار، کراچی میں آج سے 3 روز کے دوران ہیٹ ویو کا خدشہ، درجہ حرارت 42 ڈگری اور گرمی کا احساس 44 ڈگری جیسا ہو سکتا ہے۔ سندھ کے بعض اضلاع میں آج مسلسل 7ویں روز درجہ حرارت 50 ڈگری یا زائد رہنے کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات نے بعض بالائی علاقوں میں شام یا رات کے وقت بارش کا امکان بھی ظاہر کر دیا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں سونار کی دکانوں میں نقب زنی کرنے والا 3 رکنی گینگ گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے گینگ میں خاتون بھی شامل ہے۔ ملزمان سے سونے کی 10 انگوٹھیاں، 27 لونگ، 10 لاکٹ، 9 بالیاں، 17 بندے، 5 جوڑی ٹاپس اور دیگر سامان برآمد۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے تناؤ دن بدن بڑھ رہا ہے، ہر ادارہ اپنے تحفظ کے لیے فصلیں کھڑی کر رہا ہے۔ تاثر ابھر رہا ہے کہ اس وقت عدلیہ برسر پیکار ہے اور اس میں سب سے بڑا ایشو بانی PTI کا ہے۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا وہ سمجھتے ہیں کہ بانی PTI کے کیسز میں ریلیف دے کر وہ موجودہ حکمرانوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ان کی شرائط پر صلح صفائی کر لیں۔ اول اور آخر دباؤ ہمارے اوپر ہے کیونکہ یہ منتخب حکومت ہی ہوتی ہے جس نے رخصت ہونا ہوتا ہے۔ بانی PTI نے جب جیل سے کال دی تو مخالفین کے ساتھ وہ کھیل کھیلیں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین نے کل وفاق کا شکریہ ادا کیا، دھمکی لگا دی۔ سوابی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تربیلا سے ایک بٹن بند کر دیا تو آدھے پاکستان کی بجلی بند ہو جائے گی۔ خیبر پختونخوا میں 22 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں۔ علی امین نے کہا آج عوام نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں۔ PTI کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت کی سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان سے دبئی میں ملاقات۔
3 घंटे तक जारी मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। डॉक्टर इशरतुल इबाद ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का वफाक और SIFC के साथ ताउन अच्छा शगुन है। इंतजामी और गवर्नेंस के मामलात को सियासी इख्तलाफात से अलग रखना चाहिए है। बामायनी डायलॉग से ही मौजूदा सियासी दर्जा हरारत कम किया जा सकता है। कहा मुफाहमत की सियासत ही मुल्क को दरपेश बहरानों से निकाल सकती है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि डॉक्टर इशरतुल इबाद की सियासी बसीरत और मामला फहमी के सब मोतरिफ और कायल हैं। दोनों रहनुमाओं का सियासी रवाबित को जारी रखने पर इत्तफाक। उन 12वें खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमें को मकबूल कर रहे हैं। साबिक सदर और रहनुमा PTI आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मीडिया, अदलिया और रियासत बंद गली में हो तो कोई भी नुकसान कर सकता है। कहा हम इदारों के खिलाफ नहीं, अपराध के खिलाफ है। बानी PTI ने कहा कि 1971 में याहिया खान की वजह से नुकसान हुआ। भुट्टो ने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को शाया होने नहीं दिया ताकि पर्दा रहे। हमने हमूदुर रहमान कमीशन से कुछ ना सीखा ना कारगिल से। कहा जब प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर कुकर फटेगा। ये मईशत ठीक नहीं होगी जब तक साथ खड़े नहीं होंगे। शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास आज लाहौर में तलब कर लिया गया। चीनी के ज़खायर और बरामद का जायजा लिया जाएगा। इजलास में शुगर मिल्स एसोसिएशन को भी शिरकत की दावत। शुगर मिल्स मालिकान ने 15 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाजत मांगी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गंदम की खरीदारी में करप्शन के खात्मे के लिए किसानों को बराह रास्त सब्सिडी देने का ऐलान। किसान कार्ड प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल हेल्पलाइन कायम करने का फैसला। अरकान असम्बली से मुलाकात में कहा गंदम खरीदारी में घपले होते थे, अब डायरेक्ट किसान को सब्सिडी देंगे। प्राइस कंट्रोल के लिए अलग सिस्टम बना रहे हैं। मरियम नवाज ने खबरदार किया कि खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग रोकने में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी से खालिद मकबूल सिद्दीकी की गवर्नर हाउस में मुलाकात। वफाकी तरक्याती मंसूबों, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। पीर पगारा से सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्क और सिंध की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा मुल्क में जमहूरियत के फरोग के लिए नवाज शरीफ के साथ मिलकर काम करेंगे। सादिक संजरानी ने कहा नवाज शरीफ मुखलिस ज़ीरक सियासी रहनुमा हैं। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट सैदाल खान ने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में जमात मुल्क को भंवर से निकालने में कामयाब होगी। गवर्नर सिंध की नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा नवाज शरीफ पर लीगी रहनुमाओं का एतमाद उनकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। उम्मीद हूँ कि हम बेहतरी ला सकते हैं, क्योंकि मुल्क में जब भी कोई तरक्की पसंद, अमन पसंद, प्रोग्रेसिव अमल लाया गया है तो वो हमेशा उसकी शुरुआत अवामी नेशनल पार्टी ने किया। सियासी पार्टी का काम होता है एक महकूम कौम को सियासी धारे में शामिल करना। तो मेरी खिदमत यही होगी कि मैं ख्वाजा सराओं की सियासी तालीम के जरिए, एजुकेशन के जरिए, सियासी रुझान को बढ़ाने के जरिए उनको तंजीमी धारे का हिस्सा बना सकूं, ताकि जिले सतह, तहसील सतह के ऊपर भी उनके मसाइल रूनुमा हों और उनको हल किया जा सके। अवामी नेशनल पार्टी ने मुल्क में पहली बार एक ख्वाजा सेरा को पार्टी की मरकजी काबीना में शामिल कर लिया। ख्वाजा सेरा डॉक्टर महरब अवान कहती हैं कि वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की सियासी तरबियत करेंगी ताकि वो सियासी अमल का हिस्सा बनकर कौमी धारे में शामिल हों और मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करें। आज़ाद कश्मीर की समाहनी वादी के जंगलात में आग, कीमती लकड़ी और जंगली हयात को शदीद नुकसान। महकमा जंगलात के मुलाजमीन और मकामी नौजवान आग बुझाने में मसरूफ। इस्लामाबाद और माडला में जंगलात और झाड़ियों में एक ही दिन 15 मकामात पर आग लगने के वाक़यात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला की वाक़े की FIR दर्ज कराने की हिदायत। कहा एक रोज़ में 15 मकामात पर आग लगने के वाक़यात की तहकीकात के लिए फौरी कमेटी तश्कील दी जाए।
क्लिफ्टन कराची के सबमरीन अंडरपास में ट्रेलर की टक्कर से पानी की लाइन फट गई, हजारों गैलन पानी जाया, सड़क बंद करना पड़ी। पानी का इखराज रोककर अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कायदाबाद में पुल पर चढ़ते हुए कंटेनर उलटने से मोटरसाइकिल सवार बाल बाल बच गया। कई घंटों से बंद सड़क कंटेनर हटाकर खोल दी गई। पंजाब पुलिस और इंटरपोल इस्लामाबाद की मुश्तरका कार्रवाई। 4 शेड्यूल का मफरूर इश्तिहारी 10 बरस बाद सऊदी अरब से गिरफ्तार। इश्तिहारी राव हबीबुर रहमान के खिलाफ थाना फतेह शाह विहाड़ी में दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। सऊदी पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले किया। रफा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी, बेघर फलस्तीनियों की खैमा बस्तियों पर आज फिर बमबारी। खवातीन बच्चों समेत 21 फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में भी इसराइली हमले, गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 65 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। आयरलैंड ने रफा पर हमले न रोकने की सूरत में इसराइल को यूरोपीय यूनियन की पाबंदियां लगने से खबरदार कर दिया। अल-जज़ायर की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज हो रहा है। फ्रांसीसी पार्लियामान में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर गर्मा गर्म बहस के दौरान फ़लस्तीनी परचम लहराने वाले रुकन 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल। सिक्योरिटी एहलकार को ऐवान से बाहर ले गए। इटली में फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन ने रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर दिया। डेनमार्क के तलबा का गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज रंग ले आया। कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी का इसराइली बस्तियों में काम करने वाली कंपनीज में सरमायाकारी रोकने का फैसला। पाकिस्तान और सेंट लूसिया के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर सिफारती ताल्लुकात पर न्यूयॉर्क में वाक़ पाकिस्तानी मिशन में तकरीब। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम और कैरेबियन जजीरे सेंट लूसिया की भी हम मनसब सफ़ीर मनीसा रैमडी ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए। मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान और सेंट लूसिया के लोगों में क्रिकेट से मोहब्बत मुश्तरक थी। सिफारती ताल्लुकात को बाज़ाब्ते बनाने से तिजारत, सियासी ताउन और सयाहत के शोबों में बाहमी फ़ायदामंद ताल्लुकात की राहें खुलेंगी। मनीसिया ने कहा कि वेस्ट इंडीज़ के साबिक क्रिकेटर डैरन सैमी, जिनका ताल्लुक सेंट लूसिया से है, एक एजाज़ी पाकिस्तानी शहरी भी हैं। और दुनिया का बड़ा कार्गो जहाज़ कल कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। MSC ऐना की आमद पर तकरीब आज साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल पर होगी। MSC ऐना की लंबाई 399.98 मीटर है। MSC ऐना में 20 फीट के 19,200 कंटेनर्स ले जाने की गुंजाइश है।